Hello students, in previous part we have studied about the non-cyclic photophosphorylation and cyclic photophosphorylation. In this process we will discuss on the dark reaction. What do you mean by dark reaction? Dark reaction is a light independent reaction. It does not mean कि ये अंधेरे में होती है, नहीं. It independent on the light. So this reaction is also known as biosynthetic reaction. Why the dark reaction is known as biosynthetic reaction? In this reaction, the production of glucose can take place. So this reaction is known as biosynthetic reaction. In this reaction, the production of glucose takes place. Thus, this reaction is known as biosynthetic reaction or biosynthesis भी कह सकते हैं, biosynthesis reaction. Firstly, the scientist who proposed this reaction was Melvin Calvin. This reaction was proposed by Melvin Calvin. Melvin Calvin exposed the green algae in sunlight, and some of the green algae were killed with the hot methanol. क्या किया उन्होंने? मेलविन कैल्विन ने ग्रीन एल्गा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. उसमें से कुछ ग्रीन एल्गा जो धूप में रखी हुई थी उनको हॉट मिथेनॉल से किल अप कर दिया. ही किल्ड द green algae which was exposed in sunlight, with the help of hot methanol. Then he observed the killed alga that the production of the synthesis product was glucose. So this reaction is known as biosynthesis reaction. Why? Because मेलविन कैल्विन ने क्या किया, ग्रीन एल्गा जो एक्सपोज की धूप में, उनमें से कुछ ग्रीन एल्गा को हॉट मिथेनॉल की सहायता से किल अप कर दिया. और किल अप करने के पश्चात उनका जब एग्जीबिशन किया तो उनमें देखा कि प्रोडक्ट जो बना था वो क्या बना था, ग्लूकोज बना था. ग्लूकोज के प्रोडक्शन के कारण से इसको क्या नाम दिया गया, बायोसिंथेसिस रिएक्शन. ये दूसरा इसका क्या बोलते हैं इसको, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ए कैल्विन साइकिल बिकॉज इट वाज प्रपोज्ड बाय कैल्विन. सो डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन बायोसिंथेसिस रिएक्शन, कैल्विन साइकिल. They saw that the scientists saw that the first product which is synthesized in this reaction was a 3 carbon atom molecule. स्टार्टिंग के अंदर इसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल वाला प्रोडक्ट बनता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दिस रिएक्शन इज अनदर नेम आल्सो नोन एज C3 pathway, because the first product which is synthesized in this reaction was 3 carbon atoms molecule. So this reaction is also known as C3 pathway. Dark reaction, biosynthesis reaction, Melvin-Calvin cycle or C3 pathway. How they examine कि 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल किस प्रकार से, suppose firstly they observed that one CO2 molecule gain 2 carbon molecule or 2 carbon atoms, then there will be 3 carbon molecule, 3 carbon atoms will be synthesized. But
इट वाज रॉन्ग। फर्स्टली इट वाज ऑब्जर्व, पहले ये सोचा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को 2 कार्बन मॉलिक्यूल मिलते होंगे तो 3 कार्बन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता होगा, लेकिन इट वाज रॉन्ग। द फर्स्ट कार्बन विच इज ऑब्जर्व्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड वाज 5 कार्बन एटम्स, दैट इज RuBp. RuBp is 5 carbon atom molecule. What is the name of RuBp? Rubulose bisphosphate, which is a 5 carbon atom molecule. This rubulose bisphosphate molecule combined with CO2 in presence of an enzyme, यानी ये जो प्रोसेस होगी रूबिलोज बिसफॉस्फेट, ये 5 कार्बन एटम जो है कार्बन डाइऑक्साइड से जब कंबाइंड होगा तो ये किसकी प्रेजेंस में, एक एंजाइम की प्रेजेंस में, और वो एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को। The combination of RuBp, rubulose bisphosphate, with the carbon dioxide in presence of an enzyme that is known as Rubisco. Rubisco stands for rubulose bisphosphate C stands for carboxylase, and O stands for oxygenase. Means फिर रूबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज मीन्स कार्बन को एडिशन करने का काम भी करता है और ऑक्सीजन को भी एडिशन करने का काम करता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ द कंडीशन विच सब्सटेंस इज एडेड विद द CO2, मीन्स कौन सा सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना है या ऑक्सीजन को ऐड करना है, ये डिपेंड करता है उस कंडीशन के ऊपर। क्योंकि रूबिस्को जो होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर उस वे से फंक्शन नहीं कर सकता, एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है तो उस वे पे भी इतना फंक्शन नहीं कर सकता। लेकिन वो चीज चेक करने की किसके साथ कौन सा सब्सटेंस को कंबाइन करना, वो डिपेंड करता है रूबिस्को पे। रूबिस्को इज एन एंजाइम विच इज नोन एज रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्लियर? द डार्क रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 3 steps. Those three steps are carboxylation. First one is carboxylation. Second is reduction. And third one is regeneration. This C3 pathway, dark reaction, Calvin cycle, as well as biosynthesis reaction can be completed by the 3 steps. The first step is carboxylation, second one is reduction, and third one is regeneration. How the carboxylation process can be obtained? We have observed that carbon dioxide, 3 carbon dioxide molecule combined with 5 carbon molecule of Rubis, RuBp. RuBp stand for rubulose bisphosphate. इसके 3 मॉलिक्यूल, और ये RuBp के अंदर RuBp के एटम कितने 3, लेकिन RuBp के अंदर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं 5. This is the 5 molecule carbon contained when 3 atoms of carbon dioxide combined with 3 atoms of RuBp in presence of an enzyme. That enzyme is known as Rubisco. The first product which is synthesized in the carboxylation or in the dark reaction is PGA, which is a 3 molecule carbon compound. 3 molecule carbon compound, so this is known as C3 pathway. मतलब जैसे ही RuBp के 3 एटम्स, इस RuBp के अंदर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं 5, लेकिन 3 मॉलिक्यूल है तो इसके में टोटल कार्बन के मॉलिक्यूल कितने होंगे 15, और 3 यहाँ हैं तो कितने हो गए 3 ये कार्बन कंटेन है, तो यहाँ प्रोड्यूस होता है PGA. PGA के अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं सिंगल में, यहाँ प्रोड्यूस होंगे 6 PGA. व्हाट इज PGA? PGA is a 3 molecule carbon compounds that is known as phosphoglycerate, and you can also say that phosphoglycerate
glyceric acid. Phosphoglyceric acid, it contains 3 molecule of carbon and it has 6 atoms. So then how many carbon atoms present? 18. 18 carbon present. On 15 and 3, 18. Then is 6 PGA molecule of produce. This reaction, production of PGA molecule, this reaction is known as carboxylation. We have already discussed carboxylation means the first product in the dark reaction is 3 carbon molecules, that is PGA. One PGA contains 3 carbon molecules. Then how many atoms? 6. It contains 18. This reaction is known as carboxylation. As the PGA is produced, photophosphorylation process can take place. Photophosphorylation means ATP synthesized into ADP plus inorganic phosphate molecule. How much ATP? 6 PGA, then there will be 6 ATP into 6 ADP molecule. At this time, the 6 IP means inorganic phosphate molecule, that is 6, is added with the PGA. It has already, इसके पास पहले ही कार्बन के 3 मॉलिक्यूल कंटेन है, इसके साथ 6 और मिला दिए तो इसमें हम 2 पोजीशन होती है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर PGA कंटेन होता है, जिसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर PGA मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर एसिडिक या फॉस्फोडाइएस्टर एसिड, या यू कैन सी दैट डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड मींस इसमें एक मॉलिक्यूल पहले प्रेजेंट था PGA, जिसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे और उसमें 6 और मिला दिए, 6 और मिला दिए, इसमें 2 पोजीशन पे आ गए, कार्बन नंबर 1 पे था ही ऑलरेडी, 3 पे कितने 6 PGA वाले और आ गए, 6 PGA वही 6 PGA, लेकिन कार्बन के 6 जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल वो ऐड हो गए, यहाँ पर ऐड होने के कारण से क्या बन गया डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि फॉस्फेट के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल में कंटेन हो गया. दैट देन द रिडक्शन प्रोसेस कैन टेक प्लेस. रिडक्शन प्रोसेस इन विच NADPS2 again change into NADP plus 2 hydrogen molecule. When the 6 molecule phosphodiphosphoglyceric acid produce होता है तो उसी समय यहाँ पर NADP जो मॉलिक्यूल हैं वहां पर प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो NADP से रिड्यूस हो जाता है. कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल. ये 6 मॉलिक्यूल होने के कारण से यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, इसमें से 6 IP मींस जहां पर डाइएस्टर हो गया तो उसमें दोबारा फिर 6 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते, जिसके कारण से रिड्यूस हो गया. और रिड्यूस होकर क्या बनाता है ये PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. PGAL स्टैंड फॉर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मीन्स एसिड कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड ग्रुप. और एल्डिहाइड के कितने 6 मॉलिक्यूल बनाता है, 6 PGAL. As the 6 PGAL molecule produced, then the next process, this reaction is after this, all this process is known as reduction. Means reduction process can take place. NADPH2 जो है NADPH में कन्वर्ट हो जाता है NADP के अंदर, तो जिसके कारण से रिडक्शन प्रोसेस होती है. आफ्टर द कार्बोक्सिलेशन दिस सेकंड प्रोसेस नोन एज व्हेन द PGAL phosphoglyceraldehyde is produced, this reaction is known as reduction. As the 6 molecule of PGAL produce, 5 PGAL comes into the next process and 1 is released here. 1 PGAL रिलीज कर दिया जाता है यहाँ से, और 6 मॉलिक्यूल जो है 5 मॉलिक्यूल है PGAL के अगेन चले जाते हैं. और यहाँ से जब प्रोसेस होती है इसमें से 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के बाहर निकल गए PGAL के, तो यहाँ कितने रह गए 3 PGAL या फॉस्फोग्लिसरेट जो है चेंज होगा किसमें मोनो RUBP के अंदर. मोनो RUBP के अंदर स्टैंड फॉर RUP. व्हाट इज RUP? रिबुलोज बिसफॉस्फेट. और यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने हैं मोनो के रूप में, मतलब सिंगल है. और यहाँ कितना था बाइफॉस्फेट.
यहाँ बाइफॉस्फेट है, यहाँ पर मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल है। तो मोनोफॉस्फेट के अंदर यहाँ पर फिर दोबारा क्या होगा, फॉस्फोराइजेशन प्रोसेस होगी। कितनी, एटीपी अगेन चेंज इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कितने 3 एटीपी मॉलिक्यूल, वो 3 एटीपी मॉलिक्यूल में 3 ही फॉस्फेट जो हाँ मॉलिक्यूल एक्सचेंज कर देंगे, जो इसको मिल जाएगा, जो कि रूबुलोज मोनोफॉस्फेट ग्रुप में प्रेजेंट है। मोनो में 3 और मिल गए ऑलरेडी, इसमें कितने थे, डाई, इट चेंज इनटू रूबुलोज। दिस प्रोसेस फ्रॉम 5PgL2 again change into RUBP is known as regeneration process. This is known as, from here is known as regeneration. Means formation of again ribulose bisphosphate biphosphate molecule, that is known as regeneration. So this is the C3 pathway or dark reaction. This one reaction in which PgL contain 3 molecule of carbon. कार्बन के कितने मॉलिक्यूल इसमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। बट वी नो दैट बायोसिन, व्हाई दिस रिएक्शन नोन एज बायोसिंथेसिस रिएक्शन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड ग्लूकोज कंटेन 6 मॉलिक्यूल। देन हाउ इज द C3 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल 6 में कैसे कन्वर्ट, इसका मतलब एक सिंगल प्रोसेस के अंदर कार्बन के 3 मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, तो सेकंड रिएक्शन जब तो होगी तो सेकंड रिएक्शन में कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इट मींस 2 प्रोसेस होते हैं, 2 प्रोसेसेस, 2 साइक्लिक होंगे। 2 साइक्लिक के अंदर मेन जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ग्लूकोज, क्योंकि 1 कार्बन 1 PgL कंटेन 3 कार्बन मॉलिक्यूल, बट वी नो दैट ग्लूकोज कंटेन 6 मॉलिक्यूल। तो हाउ इज द 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट, देन अगेन second cycle will take place, it will reach C3 and C3 6 molecule. In this reaction, what is the main calculation, how many ATP and NADP process can be taken, how many ATP energy currency and NADP are used. We know that in one cycle 6 ATP यहाँ पे हैं, 3 ATP आए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 9 ATP। 6 + 3 ATP stand for 9 ATP are used in one cycle. एंड सेकंड साइकिल, क्योंकि ग्लूकोज तो हमारा सेकंड साइकिल में बनेगा, इसका मतलब 9 यदि हमारे एक साइकिल में, तो सेकंड साइकिल में कितने बनेंगे हमारे, 18 ATP molecules are used. So when glucose is produced, then 18 molecule of ATP produced and NADP एक साइकिल के अंदर कितने हैं, 6। साइकिल दूसरा भी होगा तो साइकिल में कितने हो गए, 6 और 6 12। तो एक ही साइकिल में जितने थे, सेकंड साइकिल यानी मतलब 2 साइकिल्स के अंदर ATP मॉलिक्यूल कितने, 18। इसी प्रकार सिंगल साइकिल के अंदर NADP आर यूज एज 6, और जब सेकेंड साइकिल होगा, जब ग्लूकोज बनेगा तो NADP कितने मॉलिक्यूल हो गए, 12। तो वी कैन से दैट one glucose molecule contain 18 ATP and 12 NADP molecules. This is the production of the C3 pathway. Clear?